Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of soil fertility lecture, today we will discuss about the process of decomposition of organic matter and what is mineralization, immobilization, and what is CN ratio and what is the importance of CN ratio during the decomposition. So, first process of decomposition, and this decomposition is actually breakdown, and this decomposition is carried by microbes, as we have discussed in previous lecture. And microbes are bacteria, fungus, actinomycetes, and other microbes are also involved, but these three are important. And out of these total microbes, the contribution of bacteria is the very significant contribution. Most of the mineralization or breakdown is carried by bacteria, and bacteria decompose almost all type of material, but it cannot decompose lignin, and bacteria is also involved in oxidation of sulfur and manganese, but lignin material is not decomposed by bacteria. And fungus also can decompose all the material including lignin. तो lignin जो होता है वो fungus उसको decompose कर लेती है. And actinomycetes decompose relatively resistant material, and this complex material is decomposed by actinomycetes, and but the process of decomposition by actinomycetes is very slow. So, rapid decomposition is brought by bacteria. So, these three are important one, and most important one is bacteria, and number of bacteria are present. Then rate of decomposition depends upon the material present. For example, this residue is maize residue, and this rate of decomposition depends upon the material present in this residue. If simple sugars, starch, simple proteins are present, then there is very rapid, very fast decomposition. And then crude protein, it takes time, further time taken by hemicellulose, then cellulose, fat, wax, and the most resistant material, or which take very more time for decomposition or very slow decomposition by lignin. तो इसमें अगर सिंपल प्रोटीन्स होंगी या शुगर्स होंगे या स्टार्च रहेगी तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब जैसे हम इसे खेत में डालेंगे और ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा. डिकम्पोजिशन का हमारा मतलब यहाँ सड़ने से है. अगर इसमें लिग्निन होगा तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा. एंड वुडी प्लांट्स जनरली हैव लिग्निन मटेरियल, दैट्स वाई डिकम्पोजिशन इज़ वेरी स्लो. तो अब ये डिपेंड करेगा कि उसमें क्या मटेरियल है. अगर वुडी मटेरियल है, उसमें लिग्निन ज़्यादा है, सेलुलोज ज़्यादा है, हेमिसेलुलोज ज़्यादा है, तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा. तो अगर कोई पेड़ को हम काट के गिरा दें, पेड़ में सॉइल में डाल दें, तो उसमें डेफिनेटली सेलुलोज ज़्यादा है, लिग्निन ज़्यादा होगा, तो उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा. और अगर बहुत सकुलेंट मटेरियल है, जैसे ये लीव्स हैं, ये देखिए बहुत सकुलेंट मटेरियल है, इसमें कोई सेलुलोज या हेमिसेलुलोज कोई अभी नहीं बना है, इसके अंदर सिंपल शुगर्स होंगी या सिंपल प्रोटीन्स होंगी, और जब इसमें हम सॉइल में डालते हैं, इसको डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा, बहुत ईजिली हो जाएगा. तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल है. तो वेरी फास्ट डिकम्पोजिशन कहाँ होगा, शुगर या स्टार्च में होगा और सिंपल प्रोटीन्स में होगा. तो ये एक मैंने सीरीज़ बताई कि किस तरह से डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होता जाता है. फिर से मैं आपको बता देता हूँ वो सीरीज़ जो है, जो सबसे फास्ट होगा शुगर्स, स्टार्च और सिंपल प्रोटीन्स, देन क्रूड प्रोटीन, इट टेक्स मोर टाइम, then hemicellulose, cellulose, then fat and wax, and in last lignin. तो अगर बहुत ज़्यादा लिग्निन है, बहुत ज़्यादा सेलुलोज है, तो बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होगा. तो ये मैंने आपको बताया. अब ये डिकम्पोजिशन होता कैसे है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ दिस डिकम्पोजिशन टेक प्लेस. एक्चुअली सेवरल माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल. ये जो सॉइल है इसमें बहुत माइक्रोब्स हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स रहते हैं. और ये मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम अगर हम सॉइल लेते हैं, 1 ग्राम सॉइल में अबाउट 1 करोड़ माइक्रोब्स रहते हैं. 1 करोड़ माइक्रोब्स तक इसमें हो सकते हैं. तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो फील्ड है इसमें कितना माइक्रोब्स होगा. एंड दिस माइक्रोब्स सीक्रेट एंजाइम्स, सेवरल एंजाइम्स. वेरी कॉमन एंजाइम इज यूरिएज. तो यूरिएज के एंजाइम के बारे में आपने जाना ही होगा कि यूरिया का जो हाइड्रोलिसिस होता है यूरिएज एंजाइम से होता है. यूरिएज, देन प्रोटीनिएज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, एमाइलेज, सल्फेटेजेस, ये जितने एंजाइम्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय माइक्रोब्स. और ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं किसका, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन रेजिड्यूज में है. तो इन रेजिड्यूज में जो मटेरियल है, जो भी इसके अंदर सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, उसका ब्रेक डाउन किससे होगा, एंजाइम से होगा. और इसके अंदर का जो कार्बन है, दैट कार्बन इज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब्स फॉर देयर सेल सिंथेसिस.
तो माइक्रोब्स जो करेंगे, जो बैक्टीरिया जो सिंथेसिस करेगा वो उसमें से कार्बन को करेगा। कार्बन इज फूड सोर्स, एक्चुअली कार्बन इज फूड सोर्स, तो दैट्स वाई दे अटैक दिस ऑर्गेनिक मटेरियल और रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू फॉर द कार्बन फॉर एनर्जी सोर्स। तो इसमें जब एनर्जी के लिए लेंगे, कार्बन पर अटैक करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको कार्बन को यूज़ करेंगे किसमें, सेल सिंथेसिस में। तो उससे क्या होगा, उनका माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेगा। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा फिर फर्दर अटैक होगा, फिर एंजाइम्स निकलेंगे, फिर फर्दर अटैक होगा, फिर वो कार्बन को यूज़ करेंगे, फिर अटैक करेंगे, फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि कार्बन उनको मिलता आ रहा है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल कार्बन होगा उसके लिए दैट इज़ वेरी गुड फूड फॉर माइक्रोब्स। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल कार्बन होगा उनकी सेल सिंथेसिस ज़्यादा होगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सिमिलरली जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन होगा, तो CO2 का रेट भी बढ़ेगा, CO2 का इमिशन ज़्यादा होगा। अब ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन एक्चुअली कार्बन इज यूज्ड फॉर सेल सिंथेसिस एंड simultaneously there is synthesis of protoplasm inside the body, and for the synthesis of protoplasm nitrogen is required. That's why they derive the nitrogen, and other nutrients are also required by microbes like phosphorus. They derive the phosphorus, calcium, magnesium, other nutrients. The microbes need these nutrients also. That's why during the decomposition these nutrients are taken by microbes and retain this nutrient in their body. तो अब जो न्यूट्रिएंट जो इसमें थे, जो इन रेजिड्यूज में थे, जो डिकम्पोज होकर सॉइल में आने चाहिए थे, वो कहाँ चले गए, माइक्रोब्स की बॉडी में चले गए, क्योंकि उसकी ज़रूरत किसको है, माइक्रोब्स को है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमोबलाइजेशन। तो जैसे डिकम्पोजिशन होगा तो इमोबलाइजेशन भी होगा, डेफिनेटली ये होना ही होना है, ये रुक नहीं सकता इमोबलाइजेशन प्रोसेस। क्यों, जैसे ही ऑक्सीडाइजेबल कार्बन मिला, कार्बन सोर्स मिला, फूड सोर्स मिला, माइक्रोब्स ने अटैक किया, फंगस ने अटैक किया, बैक्टीरिया ने अटैक किया, उनकी सेल सिंथेसिस हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, उनको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी में चले गए सेल सिंथेसिस के लिए, एंड दिस इज नोन एज इमोबलाइजेशन। तो अब क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन सॉइल सॉल्यूशन, दैट्स वाई नॉट अवेलेबल टू प्लांट। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीडाइजेबल कार्बन मतलब जो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है इज एग्जॉस्टेड, अब क्या होगा, क्योंकि माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उन्होंने कार्बन लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो भी कार्बन होगा, मैंने ये रेजिड्यूज पढ़ा था, इसके अंदर जो भी कार्बन होगा वो कार्बन कहाँ चला जाएगा, माइक्रोब्स की बॉडी में चला जाएगा और CO2 के थ्रू उसका इमिशन हो जाएगा। तो जब इसका कार्बन खत्म हो जाएगा तो अब फर्दर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, अब उनको फूड नहीं मिलेगा, तो माइक्रोब्स की क्या होगी, डेथ होगी। तो जो माइक्रोब्स की डेथ होगी तो जो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में रिटेन थे वो कहाँ जाएंगे, सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। नाउ दिस न्यूट्रिएंट्स whether it is nitrate, phosphate, calcium, magnesium are released into soil solution and available to plant, and this process is known as mineralization। तो देखिए दोनों ही प्रोसेस चलेंगे जब ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, इमोबलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन। एंड इमोबलाइजेशन न्यूट्रिएंट्स आर टेकन बाय माइक्रोब्स, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन these nutrients which were in plant body are now released into soil solution, this is mineralization। तो ये दोनों ही प्रोसेस चलते हैं। अब इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की फॉर्म की उसमें देखें कि इमोबलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म में जो थे, प्लांट रेजिड्यू में थे, ऑर्गेनिक फॉर्म में थे, एंड दे आर टेकन बाय माइक्रोब्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयन एंड रिटेन बाय माइक्रोबियल बॉडी। अभी माइक्रोबियल बॉडी में किस फॉर्म में चले गए, फिर से ऑर्गेनिक फॉर्म में चले गए। तो जो ये ऑर्गेनिक फॉर्म से प्लांट रेजिड्यू फॉर्म से किस में आए थे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, एंड रिटेन बाय माइक्रोबियल बॉडी फर्दर इन ऑर्गेनिक फॉर्म। तो जो इनऑर्गेनिक फॉर्म थी जो सॉइल सॉल्यूशन की, वो किस में चली गई, ऑर्गेनिक फॉर्म में। दिस इज इमोबलाइजेशन। तो इमोबलाइजेशन क्या है, इन इमोबलाइजेशन इनऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये ऑर्गेनिक फॉर्म कहाँ है, माइक्रोबियल बॉडी में है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो बॉडी थी ऑर्गेनिक फॉर्म में थी, अब किस में आ जाएगी, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाएंगे, लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट। तो इसको बोलेंगे हम मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में क्या होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये मिनरलाइजेशन और इमोबलाइजेशन का मैंने आपको बताया क्या ये प्रोसेस होते हैं। तो जब भी डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा और इमोबलाइजेशन होगा, और क्या होगा, इसमें CO2 का इमिशन होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से माइक्रोब्स इसमें इन्वॉल्व है और क्या इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, और ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन क्या होगा। तो देखिए CO2 निकलेगी जो भी डिकम्पोजिशन होगा, और उसमें से वाटर निकलेगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन किस में चला जाएगा, CO2 में चला जाएगा, हाइड्रोजन, और उसमें कंबाइन होकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब ये जो एनर्जी होती है, ये दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब्स और लिबरेटेड एज हीट।
तो जब भी डिकम्पोजिशन होगा वहाँ हीट निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। दूसरा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर टेकन बाय माइक्रोब्स एंड फर्दर कम इनटू सॉइल सॉल्यूशन। दूसरा प्रोसेस ये होगा। थर्ड क्या होगा, ह्यूमस फॉर्मेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंट मटेरियल बनेंगे। तो जो रेजिड्यू बना है उससे नए कंपाउंड्स बनेंगे, नया सिंथेसिस होगा और फिर पॉलीमराइजेशन होगा, तो ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। तो 3 रिएक्शंस यहाँ होंगे जब डिकम्पोजिशन होगा। नंबर 1 CO2, लिबरेशन ऑफ CO2, वाटर एंड हीट। नंबर 2 मिनरलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। नंबर 3 इज ह्यूमस फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस होगा। अब देखिए क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन हुआ, जो मटेरियल था, कॉम्प्लेक्स मटेरियल था रेजिड्यू के अंदर, नाउ कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड, एंड माइक्रोब्स अटैक ऑन दिस सिंपल कंपाउंड एंड दिस compounds are retained in the body of microbes and modification of new compounds, synthesis of new compounds। तो एक मॉडिफिकेशन भी होता है और नए कंपाउंड्स बनते हैं माइक्रोब बॉडी में, सिंथेसिस होता है। अब जब माइक्रोब्स की डेथ होगी तो उसको दूसरे टाइप के माइक्रोब्स उस पर अटैक करेंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। तो ये कहाँ हो गया, फिर एक फर्दर नया सिंथेसिस होगा कंपाउंड्स का उन माइक्रोबियल बॉडी में। अब ये जो सेकेंड टाइप के माइक्रोब्स है, जब इनकी डेथ होगी तो उस पर कोई दूसरा टाइप के माइक्रोब्स अटैक करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक चेन चलती है और ये अटैक तब तक होता रहता है जब तक कि उसके अंदर ऑक्सीडाइजेबल कार्बन, ईजिली डाइजेस्टेबल कार्बन रहता है और जब तक कि चेन सिंपल रहती है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चेन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, नए कंपाउंड बन जाए, पॉलीमराइजेशन हो जाए, तो वो फर्दर अटैक नहीं कर पाते। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंट मटेरियल। तो रेसिस्टेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें फर्दर माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये रेसिस्टेंट मटेरियल बनता कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल ब्रेकडाउन हुआ, फिर नया सिंथेसिस कंपाउंड्स बने, मॉडिफिकेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, नए नए कंपाउंड बनते गए, कॉम्प्लेक्स चेन बनती गई और उसके बाद उसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो जो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन गया, रेसिस्टेंट मटेरियल बन गया, डार्क टू ब्राउन कलर हो जाता है, कोलाइडल हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन होगा, सिंथेसिस होगी और पॉलीमराइजेशन होगा। तो इस तरह से ह्यूमस बनता है। इसको मैं एक पहले लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ। तो जब हम देखते हैं कि नाउ ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन क्या होगा, ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। तो एक प्रोसेस होगा, मिनरलाइजेशन भी होगा, इमोलाइजेशन भी होगा। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरह से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन। अब ये डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा। अगर मटेरियल में देखिए सेलुलोज, हेमिसोलुलोज ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा, न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिलीज होंगे। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से प्रोसेस होगा। अब देखिए क्या होता है, CN रेशियो का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का। तो इन जनरल सॉइल में जो CN रेशियो होता है वो 10:1 to 12:1 होता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इट कंटेन अबाउट 60% ऑर्गेनिक कार्बन एंड अबाउट 5% ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो 5% ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड 60% अबाउट ऑर्गेनिक कार्बन। तो कितना रेशियो हो गया, 12:1। तो ये एक सॉइल में इसी तरह का रेशियो रहता है, 10:1 to 12:1। तो अगर उसमें हम एटम देखें कार्बन के, अगर 10 एटम कार्बन के होंगे तो एक एटम किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, दैट इज 10:1। अगर 12:1 हम कह रहे हैं तो इसके अंदर 12 एटम कार्बन के हैं तो 1 एटम किसका होगा, नाइट्रोजन का। दिस इज CN रेशियो। एंड इन सॉइल, कोई भी सॉइल हम अगर लेते हैं, ये जनरल कितना रहता है, ये इतना रेशियो इसका फिक्स रहता है। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दें, घटा दें, लेकिन ओवर ए पीरियड ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स नीड बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन किस लिए चाहिए, सेल सिंथेसिस के लिए चाहिए, और नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए। तो माइक्रोब्स जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो दोनों ही चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। तो जो कार्बन का जो होता है वो देखिए एग्जॉस्ट किस में हो जाती है, सेल सिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन होगा और CO2 में चली जाएगी। नाइट्रोजन कहाँ हो जाएगी, उसकी बॉडी में आ जाएगी, और बॉडी के बाद भी क्या होगी, माइक्रोब्स के मिनरलाइज होकर ये कहाँ जाएगी, सॉइल सॉल्यूशन में हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो कार्बन चला जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ रहेगा, सॉइल में ही रहेगा। तो CN रेशियो क्या होता जाता है, नैरो होता जाता है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं इनका CN रेशियो अगर हम देखें, बैक्टीरिया का है 4:1। तो इसका मतलब कि 4 एटम अगर कार्बन के चाहिए तो उसे 1 एटम किसका चाहिए, नाइट्रोजन की चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन से ज़्यादा चाहिए। फंगस का रहता है करीब 9:1। तो फंगस का वाइड CN रेशियो 9:1। फंगस को इतनी ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है। अब जो प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल का देखिए CN रेशियो, अगर हम इस स्ट्रॉ का देखें, इन स्ट्रॉ के CN रेशियो देखें, इट इज़ अबाउट 100:1। तो ये मेज का है, चाहे वीट का है, चाहे राइस का है, ये 100:1 के आसपास रहते हैं। तो अब देखिए माइक्रोब्स को कितने की जरूरत है, 4:1 की, और हमने जो रेजिड्यू डाला वो कितने का डाला, 100:1 का। कि मतलब
4:1 का मतलब यह है कि बैक्टीरिया को 4 कार्बन के साथ 1 एटम नाइट्रोजन का चाहिए, लेकिन इसमें 100 कार्बन के साथ जब हम ले रहे हैं तो केवल 1 नाइट्रोजन का मिल रहा है। तो इसका मतलब कि यदि बैक्टीरिया इस पर अटैक कर रहा है तो इसमें नाइट्रोजन क्या है, डेफिशिएंसी है। अगर इसमें बैक्टीरिया अटैक करता है 100 कार्बन ले रहा है तो अकॉर्डिंगली उसे नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसमें नाइट्रोजन क्या है, कम है। तो ऐसी केस में क्या करेगा बैक्टीरिया, जो सॉइल सॉल्यूशन की जो नाइट्रोजन है उसको भी ले लेगा, और इसकी नाइट्रोजन तो लेगा सॉइल सॉल्यूशन से भी ले लेगा, सॉइल की नाइट्रोजन ले लेगा, तो सॉइल में क्या जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो यही इमोबिलाइजेशन है। तो अब अगर हम रेजिड्यू ऐसा डालते हैं जिसका CN रेशियो बहुत वाइड है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, सॉइल सॉल्यूशन से लेंगे। और अगर हम कोई ऐसा रेजिड्यू डालते हैं जैसे लेग्यूम का करीब 30:1 रहता है, तो उसमें क्या है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अच्छी है, तो उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल से नहीं लेगा, क्योंकि वो लेग्यूम का रेजिड्यू उसको फुलफिल कर दे रहा है। तो ये रेजिड्यू पर डिपेंड करेगा कि माइक्रोब्स कितने सॉइल सॉल्यूशन से ले रहे हैं। अगर बहुत वाइड CN रेशियो वाला हमने रेजिड्यू डाला है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सॉइल सॉल्यूशन से ले लेगा, और एक टेम्परेरी डेफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन सॉइल से चली गई, एक्चुअली नाइट्रोजन थी वो लॉक्ड हो गई बैक्टीरियल सेल में। तो दिस इज टेम्पररी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, दिस इज ड्यू टू इमोबिलाइजेशन। तो इसको नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड, एंड इट इज इन जनरल 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स मतलब 1 to 2 मंथ भी हो सकता है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा है। या अगर मान लीजिए सेसबेनिया है, ढैंचा है, इसमें तो अच्छा CN रेशियो होता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। राइस है या वीट है, मेज़ है, तो स्लोली डिकम्पोज होगा, उसमें नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जब भी हम रेजिड्यू मिलाएंगे तो इसका मतलब कि अब इसमें रेजिड्यू मिला है तो इसमें, और तुरंत रेजिड्यू मिलाने के बाद अगर क्रॉप की सोइंग कर दें तो उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को ले लेगा, क्योंकि उससे कार्बन तो मिल गया लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिली रेजिड्यू से, तो नाइट्रोजन उसने कहाँ से ली, सॉइल सॉल्यूशन से ली, तो ये डेफिशिएंसी आ गई। तो जब भी हम रेजिड्यू मिलाएंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेजिड्यू हम करीब 1 महीने पहले हम इनकॉर्पोरेट कर दें, 1-1.5 महीने पहले। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 1-1.5 महीने पहले रेजिड्यू इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे, हमें रेजिड्यू इनकॉर्पोरेट करना है और तुरंत हमें सोइंग करनी है, तो हम क्या करें, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बाहर से डाल दें, यूरिया डाल दें, ताकि वो जो नाइट्रोजन किसको मिल जाए, बैक्टीरिया को मिल जाए, और जो उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी, और वो सॉइल सॉल्यूशन से नाइट्रोजन नहीं लेंगे। अब क्या होगा, जब नाइट्रोजन ले लेंगे थोड़ी देर उनकी डेथ हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का लॉस होता है, यह एक टेम्परेरी लॉकिंग होती है नाइट्रोजन की, टेम्परेरी डिप्रेशन या टेम्परेरी डेफिशिएंसी आती है। तो ये एक CN रेशियो की सिग्निफिकेंस है कि CN रेशियो कैसे डिसाइड करता है। क्रॉप रेजिड्यू डाल रहे हैं, जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, नैरो CN रेशियो अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर वाइड CN रेशियो डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो ये एक रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे इसका असर पड़ता है कि अगर वाइड CN रेशियो वाला रेजिड्यू है तो बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होगा और नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड ज़्यादा होगा। अगर नैरो CN रेशियो वाला है तो डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट होगा और नाइट्रोजन बहुत जल्दी मिनरलाइज हो जाएगी। तो अब अभी देखना पड़ता है कि नाइट्रोजन मिनरलाइज होगी, मतलब कि सॉइल सॉल्यूशन में आएगी, या इमोबिलाइज होगी, बैक्टीरियल सेल में जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन CN रेशियो। तो CN रेशियो अगर इफ इट इज़ लेस देन 20:1, देन नाइट्रोजन विल बी मिनरलाइज्ड, मतलब कि उस ऐसे केस में बैक्टीरिया की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और नाइट्रोजन कहाँ रहेगी, सॉइल सॉल्यूशन में रहेगी। इफ इट इज़ मोर देन 30:1, CN रेशियो इज मोर देन 30:1, अगर रेजिड्यू में CN रेशियो 30:1 है, देन नाइट्रोजन विल बी इमोबिलाइज्ड। तो ये देखिए मेज का रेजिड्यू है, इसमें 80 to 90:1 रहता है CN रेशियो मेज का करीब। तो जब मेज का रेजिड्यू मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन इमोबिलाइज्ड होगी और करीब 1-1.5 महीने बाद ये रिलीज होगी। तो अगर 20:1 से कम है तो मिनरलाइज्ड होगा, और 30:1 से ज़्यादा है तो इमोबिलाइज्ड होगा। अब बात करें कि अगर इन दोनों के बीच में हो, 20 to 30:1 हो, 20 से तो ज़्यादा हो लेकिन 30 से कम हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, थोड़ी मिनरलाइज्ड होती है, थोड़ी इमोबिलाइज्ड होती है। तो इसमें क्या है, इस पूरे प्रोसेस में हम कह सकते हैं ना तो इमोबिलाइज्ड होगी ना मिनरलाइज्ड होगी। जो टोटल नेट मिनरलाइजेशन है और नेट हम इमोबिलाइज देखें तो क्या होगा, दोनों का बराबर आएगा। तो ऐसे केसेस में ना तो प्रॉपर प्लांट को मिलेगी और ना ही माइक्रोल सेल में प्रॉपर जाएगी। दोनों के बीच में क्या रहेगा, नेट बैलेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जब भी हम रेजिड्यू मिलाएं, चाहे वीट रेजिड्यू मिलाएं, चाहे एक्स्ट्रा कोई भी रेजिड्यू मिलाएं, उसमें या तो हम वेटिंग पीरियड दें नाइट्रेट डिप्रेशन पीरियड के लिए। अगर हम पे वेटिंग पीरियड का टाइम नहीं है तो हम थोड़ा सा उसमें एक्सटर्नल नाइट्रोजन सोर्स दें ताकि वो जल्दी डिकम्पोज कर जाए। अब जैसे ग्रीन मैन्योरिंग के लिए हम सेसबेनिया ढैंचा यूज़ करते हैं, तो देखिए ढैंचा में ऑलरेडी क्या CN रेशियो क्या है, बहुत नैरो है CN रेशियो। लेग्यूम का मैंने बताया था करीब 20-30:1 रहता है, तो CN रेशियो 20:1 से भी कम है तो क्या होता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है।
मतलब उसमें माइक्रोबियल अटैक जल्दी होता है और डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा, तो वहाँ टेम्परेरी लॉकिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम दूसरे रेसिड्यू बनाएं तो इसमें टेम्परेरी लॉकिंग ज़्यादा होती है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ इमोलाइजेशन एंड व्हाट इज़ मिनरलाइजेशन, एंड दिस इमोलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन डिसाइड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये मैंने आपको आज के लेक्चर में बताने की कोशिश की, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, how the rate of decomposition is affected, and how microbes decompose material, and what is the significance of CN ratio, what is CN ratio। और आगे के लेक्चर में इसको और डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।